بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبنہ کیس کی اپڈیٹ میں نے ڈالی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس میں تعاون کریں گے اور آگے کے لیے میری بیڑ کی ٹیم اس میں ضرور جو انسٹرکشن دیے گئے وہ فالو کرے گی، اور اگر یہ کام یہاں سے شروعات ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کا خاتمہ پہلے رکاوٹ سے ہوگا، پھر اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ختم ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری بچیوں کے لیے ایک بہت سیف سائٹ ہوگی۔ اور یہ ضروری ہے کیونکہ اب ہمیں زخموں پہ مرہم کی نہیں، نمک کی ضرورت ہے، اور نمک نہیں بھلے تم تیزاب ڈال دو۔ یہ بولنے پہ مجبور ہونے والی میں شبینہ انیس قریشی، حفاظت نسل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 روز سے لبنہ فردوس بنت عبدالستار مومن کے متعلق جو ارتداد کا اور ایک ہندو مذہب میں شادی کرنے کا ویڈیو پھیل رہا ہے، اس تعلق سے مقام علماء متفکر ہوئے اور الحمدللہ بچی صحیح سالم اپنے گھر آ چکی ہے۔ پردے کی آڑ میں اس بچی سے بات چیت کی گئی۔ اس نے صراحتاً اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ سب معاملہ مجھے گمراہ کر کے ہوا ہے، اور میں تب بھی مذہب اسلام پر قائم تھی۔ مزید آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے میں اقرار کرتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے۔ اس طرح بچی نے اپنی اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور آئندہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہو اس کا پکا وعدہ کیا ہے۔ لہذا جو ویڈیو اس سے پیشتر چل رہا ہے تو آپ اس سلسلے میں اس پر روک لگائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے ملنے جلنے والے اور دیگر گروپس تک کے پہنچائیں، تاکہ ایک وہ بچی جس نے غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے، اس کی توبہ بھی منظر عام پر آ سکے۔ اس تعلق سے تفصیلی ویڈیوز جو بھی ہے ایک مینار چینل بیڑ حافظ جمیل صاحب کے توسط سے انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گا، تو اس میں جو کچھ تفصیلات ہے آپ وہاں پر دیکھیے۔ ابھی سر دست یہ ویڈیو بنا ہے، لہذا اس کو دیگر احباب تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ دوسری آڈیو جو وائرل ہو رہی ہے، یہ مفتی صاحب اور لڑکی کے والد کی ریکارڈنگ ہے، اسے بھی آپ ذرا سن لیجئے، اور پھر دونوں کے سننے کے بعد میں جو بول رہی ہوں اس میں آپ کی رائے کیا ہے، مجھے ضرور سے ضرور میرے نمبر پر کال کر کے بتائیے، 9821548029، شبینہ انیس قریشی۔ وہ کرے ہاں، وہ اس کو ملی ہو گنگا کھیڑ کو، تو کہاں سے اٹھائی تھی اس کو؟ اپنے گھر کے آگے کارنر آ رہا کیا گنیش نگر، لائٹ بل بھرتے تو لائٹ بل، ہاں سویرے کا ٹائم تھا 8 بجے کا، وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور اس کا فون بھی بند تھا، تو اپن خود پریشان تھے کہ اس کا تو باہر ایسا کچھ دکھتی نہیں، کیونکہ انہیں گھر کے باہر ہی جاتی نہیں تھی۔ ہاں تھوڑا وہ شک آ رہا تھا کوئی بچے کے ساتھ بھاگی ہوں گی بول کے، مگر شک مطمئن نہیں ہو رہے تھے، تو اپن نے پھر بعد میں کمپلین دی اس کے نام کی، مس کمپلین، کہ بچے ہمارے گھر سے نکلی تو بعد میں آئی نہیں، غائب ہے۔ ہاں پھر اس کے بعد میں دوسرے دن فون تو کنٹینیو چالو تھے، انہیں فون لے کے رکھ دیا تھا، اس کے پاس تھا بول رہی تھی، فون بھی بستہ بھی، تو اس کے بعد میں جو ہے تو انہیں اس کے ٹی وی سے کرا، اسی دن لے کے گیا انہیں 19 تاریخ کو، مطلب وہ جو گاڑی میں ڈالے اسی دن لے کے چلے گئے اس کو۔ اوکے ویڈیو بوڑی نا کھانا کھایا کہ پوچھے تو کھانا نہیں کھایا، وہ بوڑی نے سب جو دباؤ کے اندر 3 چھوکرا تو تھے بولتے ہو، اس میں تو انہیں بتا رہی ہے میں اپنے راضی سے یہاں پر آئی ہے۔ ہاں تو وہ اب تو دباؤ میں بولنے کی والی نا، ہاں 1 سال سے پیار چل رہا بول کے۔ ہاں تو ابھی کہاں ہے بچی؟ بچی گھر کو لایا نا۔ اچھا، آپ کو مطلب کہاں تھی، کہاں ملی پھر وہ گنگا کھیڑ، گنگا کھیڑ میں؟ بولے تو ہم کو کل فون آیا تھا، ہاں تو ہم نے مس کمپلین دیے تھے یہاں پہ، تو وہاں پہ پولیس والوں نے بولے تھے تمہاری بچی جہاں پہ بھی ہے تو اس سے بالکل ایک دم نارمل بات کرو، میٹھی بات کرو، اور اس کے ساتھ اگر بھاگتی جائیں گے لڑکے کے ساتھ کوئی بھی تو اس سے بھی اچھی بات کرو، ایک دم جیسا تم ان سے مطمئن ہے، ایسا بول کے ان کی لوکیشن لینے کی، موبائل بند مت کرن دو۔ تو پھر میں نے بولا بیٹے جس کے بھی ساتھ گئے تو اس سے بات کرا، اس کے ممی پاپا سے بات کرا، ہاں تو 2-3 بار بولا میں نے اس کو ہینڈ فری کر، میں نے بولا بازو میں کھڑا لاؤں گا، تو سنا انہیں، پھر اس نے بولی کرتے کے بعد تو اس نے کرا بات،
उन्होंने बोला ठीक है तुम जो कोई भी मुलाकात करो और फोन बिल्कुल बंद मत करो मल तुम। अब जो होगा होगा। मैंने बोला अरे पेपरबाजी होंगी, वीडियो गिरेंगे, फोटो गिरेंगे, ऐसा मत करो। मतलब इज्जत का मामला है, इस वजह से तुमको समझा रहा। मतलब तुमको मैं एक्सेप्ट करता, तुम्हारी मम्मी से बात करो। मतलब उसको मैंने इसमें लिया अपने बातों की, जैसे पुलिस वालों ने शिकायत थी। तो फिर उसके बाद में 1-2 बार फोन है, मतलब ठीक है हम निकल रहे हैं, आ रहे हो तो आओ। बोले तुम तो काय को आ रहे? तो मतलब मिलने को, हमारी बेटी को, मतलब शादी करने के बाद बेटी को मिलते नहीं, मतलब घर को लेके आएंगे हम। नहीं बोले मैं घर को नहीं भेजूंगा। मैं बोला ऐसा कैसा रहता। फिर ये जब तक भी मालूम नहीं था वो हिंदू है बोल के। वो उसने जब हम कल पुलिस स्टेशन में जमा करे ना बच्ची को, अपने वहाँ के बच्चों ने, तो उसके बाद में वायरल करा उसने ही। अच्छा। हाँ, तो वो बजरंग दल के लोग आने की गुंजाइश थी वहाँ पे। फिर उसको बात करा, यहाँ से निकले हम, तो वहाँ से उन्होंने बॉन्ड लेने को निकले थे। अच्छा। बॉन्ड लेके आ रहे थे, मेरे को मेरा साइन लेने की थी उनको बॉन्ड पे से। कि हम इसके बाप के साथ भेज रहे, और भेजने का नहीं था, उसको लुबना को छुपा देने का था, आगे फरार कर देने का था। अच्छा। ऐसी कुछ उनकी प्लानिंग थी वो। तो वो वहाँ के अपने बच्चे आ गए फरिश्तों के जैसे, उन्होंने देखे, पकड़े, उसको मारे तो भाग गया वो। इसको बोले कहाँ की है तू, क्या है, पूछताछ करे इसको, या भी सूद में है ना। फिर इसको पुलिस स्टेशन में लाए, इन्हें क्या पूरा खड़ जो यहाँ की है वो सब बोली उन्हें। अच्छा। फिर वो जैसी बोलते थे, उसके माँ बाप को भी उठा के लाए थे ना, जिसके घर में थी उसको मैंने बोला ना किडनैपिंग का और रेप केस डालूंगा तुम्हारे ऊपर, मतलब मेरी बच्ची तुम्हारे घर में कैसा। तो वो हाथापारा पड़ रहे थे, वो सोना चालू थे ना उनकी भी। वो छोकरे ने ताबड़ तो उसके पास अब प्रूफ है ना, उन्होंने डाल दिया इसके इंटरनेट के ऊपर, वो पूरा फैल गया वो पूरा। हाँ ना, ये मैं अभी जैसे देखा उसको, मेरे को एकदम तकलीफ हुई। मैं बोला यार सत्तार भाई की बच्ची है, फिर ये मैं सत्तार भाई को लगाता फोन, पूरी हकीकत मालूम होती क्या है। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। रात को मुफ्ती साहब का फोन आया था मेरे पास। कौन से? अपने मुफ्ती भाई के, मुफ्ती साहब माजिद। हाँ। तो मैं इंशाल्लाह देखूंगा ड्यूटी से निकले बाद उनके पास, उसको थोड़ा बताने को। गुंग है वो, गुंग शादी की नहीं कुछ, और गुंग है, फ्रेश बात नहीं कर रही। उसको घर में डांट रहे नहीं, कुछ नहीं, बस गुंग है एकदम। नहीं, थोड़ा उस पर तवज्जो दो। और ये बहुत जैसा बहुत ये कैसा है, वीडियो एक बार लीक हो गई, सब तरफ चली गई ना, तो बहुत मसाइल खड़े हो रही है मुस्लिम लड़कियों के वास्ते। अब उसके एक दिन पहले वहाँ पे PI ने और वहाँ के 2-3 कांस्टेबल लेडीज ने बताइए ये ऐसा ऐसा, वो रेलवे स्टेशन के पास नहीं कि मारे जी पत्थर से कूद के मुस्लिम लड़की। वो है मस्जिद को बहुत सारे बताए उन्होंने। तो वो इसको तो समझो उसने ये करके ले गया था ना, ऐसा बता रही नहीं है। वो धर्म परिवर्तन कभी है ना, उस पे फोटो आया वो छोकरा हरिजन का है वो। अब वो हरिजन का छोकरा है, तो अब सोचने के वास्ते ये है कि भाई उन्हें बुद्ध विहार में लेके जाना था शादी करने को। क्योंकि हरिजन लोग जो तो बुद्ध विहार में शादी करते, हिंदू रीति रिवाज से नहीं करते। अब उन्हें वहाँ जो हिंदू रीति रिवाज से करा, तो वहाँ 15 लाख रुपए का ऑफर है, मुस्लिम लड़की को भगा के लाओ, पटा के जाल में फंसा के और शादी करो। तो हिंदू बोल के अंदर उन्हें कबूल ना, अंदर शादी कर रही, वो कर रहा है, नीचे कागज पे लिखा लेना हिंदू हो गई बोल के। हाँ, और जबकि उसको उन्हें फोन के बात कर रहा था मैं, तो उन्हें बोल रही थी कि उन्हें ईमान कबूल करा, मुसलमान होने वाला है। हाँ, ये तो समझ में आया था अपने कि इनको जो है तो भी चक्कर है। हाँ, लेकिन अपने को मिठास से लेके उसको हासिल करने का था ना। ठीक है। अब क्या करो, उसकी मुकम्मल निगरानी करो, उसका जहन अच्छा साफ करो, और उसको मुफ्तियार साहब को घर पे बुला के थोड़ा सा समझाओ उसको। तो इंशाल्लाह उसका ईमान, यकीन, ये चीजें जब मजबूती उसके अंदर और आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, रखो। रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये इसके एक मुफ्ती साहब के साथ में इसके वालिद की एक वीडियो वायरल हुई है कि लड़की ने कलमा पढ़ ली, और मेरे पास एक दूसरी ऑडियो है जिसमें बोल रहे हैं, ये इसका बाप बता रहा है कि मेरी बेटी पे प्रेशराइज किया गया और उसने अंडर प्रेशर ये सारा कुछ किया है। तो आप मुझे बताओ, अंडर प्रेशर अगर सारा कुछ की तो कलमा पढ़ाने की जरूरत क्या थी? और अगर इसने अंडर प्रेशर की है तो फिर इसको आर्य समाज के ऊपर जो ये सर्टिफिकेट दिखा रहा है
धर्म परिवर्तन का केस इसके ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिर क्यों ऐसे वीडियो बना के आप लोगों को जो है तसल्ली दे रहे हो और मरहम लगा रहे हो? हमें मरहम की नहीं, हमें अभी नमक की जरूरत है। और मैं तो बोलती नमक नहीं, तेजाब डाल दो भले, लेकिन ऐसे मरहम मत लगाओ जिससे आगे जाकर कोई और दूसरी लड़की ये लोग अपने काम के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने हवस के लिए शिकार बना सके। फजर का टाइम है, अजान हो गई है, इतना ही बोलूंगी कि अब और तसल्ली की जरूरत नहीं है। हमारे सर आंखों पे ऐसी मोतबर शख्सियतों की बातें, और ऐसे कामों में अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते और चुप मत बिठाओ, मत बिठाओ चुप। और खुदा ना खास्ता अभी अगर एफआईआर नहीं हो सकी और ये लड़की इस दस्तावेज की बिना पर कुछ गलत फहमी दिमाग में ले ली, और वो लड़का, उसके लिए तो सब कुछ है दस्तावेज, उसने इसकी बिना पर फिर लड़की को उकसाया और लड़की फिर घर अगर छोड़ी तो लड़के का तुम बाल बाका नहीं कर सकोगे। ये आपकी नेकियां थी। ये बच्ची वापस आई, और ये बच्ची कैसे आई तो पूरी ऑडियो से, आपकी बात से, लड़की के वालिद से यानी अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक अल्फाज सच्चा है वो, और ये भी एक एक अल्फाज सच्चा है। अब दोनों को मिक्स, और माफी चाहती हूँ, आप सोचेंगे नमाज अजान के टाइम पे आपका बात कर रही है, तो ये मेरे घर की घड़ी की अजान है जो बराबर टाइम टू टाइम कंप्यूटराइज 5 वक्त की अजानें देती है। और इसकी कदर मेरे लिए इतनी है ना कि हम इस पर अजान, इस अजान पर नमाज अदा करते हैं। जिनके घरों के बाद मस्जिद है वो इसे सुनकर अनजान बनते हैं। और ये काम जो मैं कर रही हूँ ये भी मेरे लिए इबादत है, क्योंकि मुर्तद होने से मैं बच्चे को बचा रही हूँ, और मेरे अल्लाह की रजामंदी में शामिल है। और ये जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ एक मुसलमान का बच्चा नहीं है, हाईफाई एरिया एकदम, 100 लोगों के फ्लैट से यहाँ पे है, टावर है पूरा, बहुत खूबसूरत मनाजिर है यहाँ के, मगर मेरे किसी काम के नहीं है। जब मैं यहाँ आई थी 2008 में, बहुत रोई थी मैं, अजान की आवाज सुनने नहीं आती थी। तो मुझे एक भाई ने हज पे से जब टूर लेके आते थे न्याज भाई मुमरा के, तो उन्होंने एक घड़ी लाके दिए थे मुझे, अजान फजर बोल के। उस घड़ी से मुझे अजान नसीब हुई। फिर उसके बाद, अब तो बात को 14 साल हो गया, फिर इसके बाद मेरी बच्ची ने सऊदी अरब से ये घड़ी लाके दी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे घर में अजान रुकी नहीं है, और नमाज भी माशाल्लाह कभी किसी कज़ा नहीं हुई। यहाँ तक कि फजर की नमाज भी मेरे बच्चों की कज़ा नहीं होने देती मैं। एक आर्मी के ऑफिसर की जो हालत होती है ना बॉर्डर पर, वैसी हालत पे मैं जिंदा रही हूँ इस जगह पर, जिंदगी गुजारी हुई इस जगह पर कि कब अटैक होगा दुश्मन का, शैतान मरदूद का, उससे बचाने के लिए अपने बच्चों को पूरी अपनी तरफ से कोशिश की। बाकी तो मेरे रब का काम है, और मेरे रब ने बखूबी इस चीज का, मैंने इल्हाम बिशारत मुझे हुआ कि मेरे रब ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी औकात से ज्यादा, मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरे लिए मेरे रब ने इंतजाम किया मेरे लिए इस जगह पर। और इस जगह से आज देखो कहाँ से लोग मुझसे जुड़े हैं इस जगह पर। यहाँ पर ये एक मुसलमान नहीं रोती थी मैं, एक मुसलमान नहीं मेरे रास्ते में, एक मुसलमान घर नहीं बात करने। और सोचो आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में मुझे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से, एहतराम से जानते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। एक बड़े बड़े मोतबर शख्सियत, एक से एक माशाल्लाह से, दीन के दाई, मौलाना, मुफ्ती, कारी, हर कोई। तो मेरे रब का निज़ाम है, वो जिसे इज्जत देना चाहे और जिसे नवाजे उसको कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। यहाँ रहकर मैंने दुश्मनों को ललकारा है, और अभी से नहीं 2012 से, क्योंकि जब तक मुझे भी नहीं, क्यों मैं झूठ बोलूं कि RSS क्या ये सब मुझे नहीं मालूम था। ऐसे धर्म की लड़ाइयाँ इस तरीके से होती है, औलादों से खेलते हैं, कोख में घुसते हैं, माओ को
दरूने को चीरते हैं और कैसे साजिशें रचते हैं और कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे बच्चों पर को ब्रेन वॉश किया जाता है ये कॉलेजों में, ये स्कूलों में। तो ये सब मुझे तब पता चला है कैसी लॉबी है इनकी, कहाँ से कहाँ तक इनके लोग बैठे हुए, जहाँ जाओ इनके लोग हैं। पुलिस चौकी से लेके, कोर्ट से लेके, कचहरी से लेके, हाई कोर्ट से लेके, कॉलेजों में, मीडिया में, और इनको जो लिखना वो लिखते ही। तुम कितने भी चिल्ला पुकार लो, तुम्हारी औलाद बाद में कितना ही तुम्हारी तरफ से बोल ले, मगर उसका कोई सुनाई नहीं होगी। इनको जो करना है वो वही करेंगे और वही सामने आएगा और वही लोग मानेंगे, क्योंकि लोग भी एक आंख के दज्जाल के फितने में आ चुके हैं, पूरी तरह उसके चुंगल में फंस चुके हैं। और वो शैतानी फितना एक आंख वाला ये मीडिया है। ये मीडिया है जो एक तरफा बात करता है और बराबर आप लोगों से मनवाता है, आप लोगों के जहन में घुसकर उस चीज को ऐसा पक्का बना देता है कि आप लोग सुनी अनसुनी करते हैं सच्चाई को, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह वालों के हुक्म को। बताओ ये सही है? अब भी अगर हम नहीं संभले ना, से बता रही हूँ, आज अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया जो कुछ बची है इसका फायदा उठा लो, वरना आगे पता नहीं कैसा वक्त आने वाला है। ये हमारी बच्चियां, इनके ऊपर जिस तरीके से जादू टोना, जिस तरीके से इनको हिप्नोटिस किया जा रहा है, ये जो बेवकूफ बन रही है और खुद होके जाके गू खा रही है। पैर चाहे कुल्हाड़ी पे गिरे, चाहे कुल्हाड़ी पैर पे गिरे, कटेगा तो पैर ही ना। ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनको थोड़ी सी शौहरत, थोड़ी सी इनकी खूबसूरती, थोड़ी सी इनके पर तवज्जो देने वालों पर ये देख रही कि ये है कौन। इनको दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं नजर आ रहा है। और किस चीज की दोस्ती भाई? गैर मर्द से दोस्ती, ये तो कतई हराम है, और फिर वो भी गैर मजहब का। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सी पाक दामनी का सबूत है? ये कौन सी पाक, बताइए, ये नस्लें पैदा हुई है जो पाक हमें बताएगी कि ये पाक रिश्ता है, आंखों में पर्दा होनी चाहिए और जो है हमें अपने में भरोसा होना चाहिए, और हम जब तक नहीं बहके तो हमें कोई बहका नहीं सकता। ये लॉजिक छोड़ दो। बगैर हथियार के लड़ाई नामुमकिन है। समझे? तुम्हारे कितने भी अच्छे इरादों पे तुम्हारी लड़ाई जंग में आप कितने भी अच्छे इरादे रखो, आपके हथियार ही नहीं है। हाँ, सामने वाला शैतान, सामने वाला दुश्मन आपको मात नहीं देगा। क्या हथियार है आपके पास? ईमान की कमजोरी। ये ईमान का ये तकाजा है। ये लड़की आज फेरे फिरने की जो ये सारी चीजें आई है, कोई इस तरीके से कर ले कर तू। चलो, इसके अंदर जो भी है, इसमें इमोशनल ब्लैकमेल या जो भी है, तो ब्लैकमेल ही है, तो वो उसके रब के खिलाफ है, तो उसके माँ बाप के खिलाफ। और लड़की का दिमाग उस पर काम नहीं कर रहा, उसने करी तो बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि लड़की पे जबरदस्ती की गई। मैं भी बोलूंगी लड़की पे जबरदस्ती की गई। तो फिर कलमा पढ़ाने वाली बात को आप बाजू में रखते हुए लड़की के ऊपर जो हिप्नोटिस और जो जादू टोना किया गया, जो सहर उसके ऊपर मौजूद था, उस हिसाब से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन का केस होना चाहिए लड़के पे, और ये धर्म के हिसाब से जो इन लोगों ने 7 फेरे लिए हैं, जैसी भी शादी इनके रस्म रिवाज से हुई है, इस पर केस होना चाहिए। लड़की का नाम बदला गया, धर्म परिवर्तन किया गया, तो ये चीजों पर लड़के पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस आर्य समाज के पूरे पॉइंट्स देखिए, क्या इनके इसमें ये क्लोज है कि ये शादी करा सकते हैं, ये धर्म परिवर्तन करा सकते हैं लड़की का शादी के नाम पे, प्यार मोहब्बत के नाम पे? क्या ये क्लोज इनके इसमें दिया गया? जैसे हमारे इसमें हम जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने मजहबी, जैसे इस्लामिक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसमें ये रुकन है ना, उसमें ये क्लोज है ना कि हम निकाह करा सकते हैं। ये अथॉरिटी हमें गवर्नमेंट से हमने प्राप्त की है ना, की या नहीं की? इन्होंने की है। तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये बात के लिए जो है ममनू करार दिया है, रद्द कर दिया है इनका यह अमल? और ये हमें पता है होने के बाद अगर हम इसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो इसी बिना पर ये दोबारा इस लड़की को भी खतरा है और लड़कियों को भी खतरा है, और ये थमेगा नहीं मामला। इसलिए एफआईआर करो और इंशाअल्लाह इसके अंदर लड़की को हमेशा के लिए महफूज करो, और इंशाअल्लाह उसके ईमान को अल्लाह पुख्ता करेगा, और इंशाअल्लाह इसके तरफ आने वाले शैतान के हर कदम को, हर दाव को, हर उस वार को रोक देगा। यह एफआईआर
بہت ضروری ہے، باندھ باندھنا بہت ضروری ہے. پانی کا بہاؤ جب پتہ ہے ایک بار اوور لمٹ، آؤٹ آف کنٹرول، فاٹا توڑ کر نکل چکا ہے، اس کو آپ نے کس چیز کا باندھ کر روکنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کس چیز کا؟ تسلی کا کہ آپ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے بارش تھم گئی ہے، دوبارہ پھر وہ بھرے گا شیطان پوری طریقے سے خرافات، پھر وہ باندھ کیا پھر وہ حد سے باہر جائے گا. تو کیا کرو گے؟ کیا باندھا آپ نے؟ کیا انتظام کیا آپ نے؟ اس میں صرف لوگوں کا ذہن بدلنا. یہ اس اسٹیٹمنٹ سے صرف لوگوں کا ذہن بدلے گا، لوگ لڑکی پر اعتماد کریں گے. کیسا لیکن کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے اللہ نے اسے معاف کیا، اس لیے ہم بھی اسے معاف کر دیں. لیکن جو لوگوں نے یہ کیا ان کی کرتوتوں کو آپ کیا نام دے رہے ہو؟ اپنی بچی پہ سارا کے سارا الزام آپ نے خود سے لے لیا. کیوں آپ اپنی بات پہ کیوں قائم نہیں رہ رہے ہو؟ والد نے، جو لڑکی کے والد نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ آواز سے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ لڑکی سے زبردستی کی گئی؟ لڑکی بھلے ہی یہ ویڈیو میں جو ویڈیو اور ایک اس میں ہے لڑکی کی کہ وہ لڑکی بول رہی کہ خود میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، اس آریہ سماج کے مندر کے کمرے میں لڑکے کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ جو دیا ہے. بار بار اس سے جو پوچھا جا رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو، اپنی مرضی سے کر رہی ہو، اتنی جو ٹھوک بجائی کی جا رہی ہے. چلو میں یہ بھی بات کو ایگری کرتی ہوں کہ لڑکی وہاں پر تھوڑی سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، جو بھی، لیکن اس کو مرضی ثابت کرا رہے ہو آپ کلمہ پڑھا کے کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ کیا ہے. اس ویڈیو کو آپ یہ ثبوت بنا رہے ہو کہ لڑکی ایمان سے غافل ہو گئی ہے، اور ایک طرف بات کہہ رہا ہے کہ اسے بہکایا گیا. تو کون سی چیز اچھی ہے؟ کون سی چیز پر یقین رکھنا چاہیے؟ کون سی چیز ہمارے حق میں، ہمارے اللہ کی پسند کی، وہ دیکھو، وہ اٹھاؤ. لڑکی کے اوپر جادو ٹونا اگر ہے تو بتائیے آپ مجھے. اس سے وہ تو شیطان نے اسے کروایا، پھر ایمان سے کیسے گئی، وہ کیسے غافل ہوئی؟ تو اللہ کے واسطے یہ دونوں باتوں کو آپ میری نظر انداز مت کیجیے. اے بیل بجی ہے، دودھ لے. الحمدللہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تہجدوں کی عادتیں ڈالے، اللہ غیر سے مدد فرمائے، اللہ مسلمانوں کی معیشت برباد ہونے سے بچائے. اللہ ہمیں جب یہ کام کے لیے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو تیری راہ میں دیا ہے تو اللہ قبول کرے. اللہ کو ہم جیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ذات کو ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے تو فرشتے کافی ہے. مگر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس چیز کا موقع دیا، تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے، اور ایک منٹ اللہ کے لیے استعمال کریں گے. اور ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، اور بہت ایمانداری سے ہم اللہ سے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل. لڑکی کا نام کیا ہے پورا؟ مومن لبنہ فردوس. پورا نام بتائیے پھر سے. مومن لبنہ فردوس. عمر کتنی ہے ابھی؟ 19 ہے. جنم تاریخ کیا ہے تمہاری؟ 31/1/2003. 31/1/2003. کہاں پہ رہتے ہو؟ شہنشاہ نگر بیڑ. یہ لڑکی کے بارے میں کیا جانتے ہو آپ؟ کہاں پہ ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاسپٹل میں. ہاسپٹل میں کون سے؟ سول ہاسپٹل بھی. لڑکے کا گھر معلوم ہے کہ کہاں پہ آپ کو؟ ہاں پتہ ہے. لڑکے کے بارے میں پوری جانکاری ہے کیا؟ ہے. ابھی آئندے میں آپ کس لیے آئے ہو؟ شادی کے لیے. شادی کے لیے. لڑکے نے پکڑ کے لایا، آپ خود کی مرضی سے آئے؟ خود کی مرضی سے. خود کی مرضی سے آئی یا لڑکے نے پکڑ کے لایا؟ اپنی مرضی سے آئی. اپنی مرضی سے، یا کچھ لڑکے نے کچھ نشہ پانی کچھ کرایا تھا، کچھ آپ کو دیا تھا کیا؟ نہیں. آپ خود کی مرضی سے آئی کیا؟ صبح سے کیا کیا کھایا آپ نے؟ آتے ٹائم کچھ ناشتہ واشتہ کیا تھا کیا؟ نہیں. ڈائریکٹ ادھر آئے کیا؟ ہاں. کہاں سے نکلے آپ؟ بیڑ سے. بیڑ سے. لڑکے نے آپ کو بلجبری لایا، آپ خود کی مرضی سے آئی؟ خود کی مرضی سے. کچھ گھر سے نکلتے ٹائم کچھ پیسہ پانی، کچھ سونا داگنا کچھ لے کے آئے کیا؟ نہیں. آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہو؟ شادی کے لیے. شادی کے لیے. اب شادی کرنے کے بعد کہاں پہ جانے والے ہو آپ؟
अपने घर जाने वाले हो, घर वाले डांटेंगे तो क्यों शादी किया ऐसा? संभाल लेंगे। हाँ, घर वालों से बात कर लेंगे बाद में। घर वालों से बाद में बात करने की। कब बताने वाले हो तुम घर पे? 1 साल बाद। 1 साल बाद घर पे बताने वाले हो शादी किया? कब किया? 1 साल पहले ही किया शादी ऐसा? अभी खुद के मर्जी से ऐसा पकड़ के लाया आपको लड़के ने? मर्जी से। क्या कुछ प्रेशर डाला था लड़के ने आपको शादी के लिए? आपका प्यार कब से चल रहा है? 1 साल से। 1 साल से प्यार चल रहा है। मोबाइल पे बातें हो रही क्या आपकी? हाँ। लड़का कहाँ पे रहता है आपने पूरा जानकारी लिया है, हाँ। इसलिए आप यहाँ पे लड़के के साथ आए हो? हाँ। मुलाचं नाव काय पूर्ण? माझं नाव हरीश भाटकर ताटे. वय किती आता? माझं आता 22. जन्मतारीख? 21/3/2000. कधीपासून ओळखतो मुलीला? आम्हाला भेटून 1 वर्ष झालं. 1 वर्ष झालं. 1 वर्षापासून तुम्ही मोबाईलवर बोलताय. मोबाईलवर बोलतो. किती